third canto, chapter number 3, titled as The Lord's Pastimes out of Vṛndāvana, text number 16, and today we'll see 17 as well. Uddhavji is describing all the various pastimes of Lord Krishna to Vidurji, and in the previous two shlokas we learned how Lord Krishna, after defeating killing all the demons on the battlefield of Kurukshetra and established principles of dharma, then he decided that he will go back to home to his Golo Vṛndāvana along with all the associates. So he made them quarrel among themselves and they destroyed themselves, and then the Lord's pastimes was thus Lord disappeared back to his home, back to Godhead from our eyes. And then in the next shloka now today, then Uddhavji is describing further about after the Mahabharata war, what did Lord Krishna did for the devotees. So here it says that Evam Sanjayanta Bhagavan Evam Sanchintaya Bhagavan Swarajye Sthapya Dharmajam Nandayam Asasura Suradaha Sadhunam Vartama Darshayan. Translation. Lord Sri Krishna, thus thinking himself, established Maharaj Yudhishthira in the position of supreme control of the world in order to show the ideal administration on the path of piety. So that's it. There is no purport by Srila Prabhupada here, but it's very straightforward shloka. Bhagavan is Lord Krishna himself. So after annihilating all the asuras, then Lord Krishna established Maharaj Yudhishthira as the king of the world to show that how the ideal administration should be run. Now Maharaj Yudhishthira is name Dharmajam. He is the son of Dharmaraj. Yamaraj is also called Dharmaraj. And Maharaj Yudhishthira is the son of Dharmaraj, so it's called Dharmajam. So his name is Maharaj Dharmajam here. And Bhagavan is Lord Krishna. Evam Sanchintaya Bhagavan. Sanchintaya means thinking. Bhagavan is Lord Krishna. And Lord Krishna, he decides who should be the king after annihilating all the demoniac personalities. Sadhunam Vartama Darshayam. Sadhunam. Sadhu means the saintly personality. So Yudhishthira Maharaj, who was king, but he was saintly. Sadhunam. So there are some characteristics of saintly person which we see in the Yudhishthira Maharaj. Saint does not mean that, like sadhu does not mean that he has to wear a saffron dress actually. Usually people think sadhu means भगवा कपड़ा, लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के लिए साधु नाम शब्द यूज किया है. साधु नाम वर्तमान दर्शयाम. तो एक राजा भी साधु बन सकता है, कैसे? तो युधिष्ठिर महाराज में वो सभी गुण थे जो एक साधु या सन्यासी में होते हैं. यानी युधिष्ठिर महाराज, he was not attached to anything. He was completely dedicated and surrendered to Krishna. Whatever Krishna said, he did it actually. And he was always righteous on the path of dharma, never telling lie, honest. Yudhishthira Maharaj was always he was
truthful side. Even there was a Yaksha Prashna when the Pandavas were in the exile for 14 years. That time, one time when all the Pandavas were thirsty and everybody went by one by the side of lake, and this lake was a poisonous lake, and whosoever Pandava drank the water, they died actually. And this was because a Yaksha wanted to test all the Pandavas. And every time any Pandava came, they drank water, and before drinking water, then Yaksha used to appear in the form of a bird, crane. He used to say, "Oh, stop drinking the water. I will ask you a question. If you answer the question, then you can drink water. Otherwise, you will die if you drink the water without answering." But all the Pandavas, including Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadev, everybody thought that this bird is gone crazy. So they did not worry about it, and they drank water. As soon as they drank water, they died. So then finally Maharaj Yudhishthir arrived there. जब महाराज युधिष्ठिर वहाँ पे आए तो वो जो बर्ड था उसने कहा कि आप अगर पानी पिएंगे तो आप मर जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कोई नहीं, आप प्रश्न पूछिए मुझे। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद ये बहुत सुंदर अध्याय है, कभी समय मिला तो उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ प्रश्न बहुत विशेष थे और वो लास्ट में जब सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए तो कहा कि ठीक है, आप पानी पी सकते हैं और आपको मैं वरदान भी देता हूँ। और वो जो बर्ड था क्रेन, वो एक्चुअली यक्ष थे और यक्ष उसमें से बाहर आए, कहा कि युधिष्ठिर महाराज आपने सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं, तो हम आपको एक आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? आप एक काम करिए, जो भी 5 पांडव है, 4 पांडव सॉरी 4 मर गए हैं, उसमें से किसी को एक को जीवित करना है, आप कर सकते हैं। तो कहे कि 4 में से कोई एक सिलेक्ट करो। तो फिर उन्होंने कहा कि सहदेव को जीवित करिए। तो कहा कि क्यों, आप भीम सहदेव से तो ज़्यादा पावरफुल भीम और अर्जुन है, तो उनको क्यों नहीं जीवित किया? तो कहे नहीं, मैं माता कुंती का एक पुत्र तो जीवित होंगे, लेकिन माता माद्री है वो जो मेरे पिता के मरने के बाद वो सती बन गई, तो अभी उनका एक पुत्र तो जीवित होना जरूरी है। इसलिए मेरे माता को कुंती की तरफ से मैं हूँ, तो माद्री की तरफ से सहदेव को जीवित करिए, और वो सबसे छोटा भी है तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो फिर जो यक्ष थे वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं धर्मराज, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, आपने बिल्कुल अपने खुद के बारे में नहीं सोचा। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचते थे, हमेशा धर्म के रास्ते पे चलते थे। इसलिए फिर वो यक्ष ने उनको कहा कि चलो मैं आपके 5 पुत्रों को जीवित कर, 5 भाइयों को, 4 भाइयों को जीवित कर देता हूँ। वैसे 5 पांडव अखंड रहे। तो युधिष्ठिर महाराज, यहाँ पे उनका नाम है धर्मजम, तो उनमें बहुत सारे गुण अच्छे थे, धर्म के गुण थे। ऐसा है कि कभी अधर्म के रास्ते पे नहीं चले। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब सबने कहा कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। एक्चुअली अश्वत्थामा नहीं मरा था। कौन मरा था? अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया था, और भीम ने अपनी गदा से अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। जब द्रोणाचार्य को पता चला, द्रोणाचार्य चिंता करने लगे कि अब मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, क्योंकि दैट वाज द शॉक फॉर हिम। तो कंफर्म करना था कि सच में अश्वत्थामा मर गया। तो उन्होंने किसी को नहीं पूछा, उन्होंने युधिष्ठिर को पूछा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, और युधिष्ठिर को ये झूठ बताना भी नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अश्वत्थामा हतायत। जब द्रोणाचार्य ने पूछा तो कहे हाँ, अश्वत्थामा मर गया है। और फिर ऐसे ही शंख का नाद हुआ, और बड़े बड़े ड्रम बजने लगे, शंख बजने लगे कि अश्वत्थामा हतायत।
तभी वो शंखनाद के बीच में युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नरोवाच गुंजरोवा, तो कहे कि नर मर गया या हाथी मर गया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो लेकिन वो द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। तो द्रोणाचार्य ने को इतना ही सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र डाल दिए, शस्त्र डाल दिए, तभी उनकी हत्या हो गई, तभी उनका सर काटा गया। तो द्रोणाचार्य जब तक जीवित थे, पांडवों को जीतना बड़ा मुश्किल था। पांडव कभी भी कौरव को पराजित नहीं कर सकते अगर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जीवित होते तो। लेकिन दोनों समय भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की और यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलवाया। एक्चुअली में झूठ नहीं है, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वो हमेशा सच रहता है। भगवान की इच्छा जो है वही सत्य है। तो युधिष्ठिर महाराज पहले से ही धर्म के रास्ते पे चलते थे, इसलिए भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज ही राजा बने, क्योंकि धर्म के रास्ते पे जो चलता है वही राजा बनना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा करप्ट है तो प्रजा भी करप्ट रहेगी, अगर राजा धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक रहेगी। तो युधिष्ठिर महाराज में धर्म के बड़े गुण थे। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को जब राजा बनाया, फिर अश्वमेघ यज्ञ भी किया, राजसूय यज्ञ सॉरी, और वही राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ। आपको कथा मालूम रहेगी, क्योंकि शिशुपाल भगवान का हमेशा अपमान करता था और भगवान ने उसकी माता को वचन दिया था कि आपके बेटे की 100 गलतियां मैं माफ़ करूँगा। तो जब महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था और सबने पूजा के स्थान पे भगवान कृष्ण को पसंद किया, सभी ने कहा, भीष्म पितामह ने भी कहा कि अगर इस सभा में कोई पूजनीय है तो वो भगवान कृष्ण है और कोई पूजनीय नहीं है। तभी शिशुपाल बड़ा क्रोधी हो गया। तो शिशुपाल ने भगवान को अपशब्द कहे तो भगवान ने उसका भी वध कर दिया। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, स्पेशली जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं उनको भगवान कभी निराश नहीं करते हैं। इसलिए भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया और सबको दिखा रहा था कि एक आइडियल, एक सच्चा राजा कैसा होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के बाद फिर उनके पुत्र परीक्षित महाराज राजा बने। परीक्षित महाराज भी युधिष्ठिर महाराज की जैसे ही धार्मिक रास्ते पे चलने वाले राजा थे। फिर परीक्षित महाराज के बाद उनके पुत्र बने जन्मेंजय। जन्मेंजय महाराज भी उतने ही सात्विक थे। तो पहले के ज़माने में हम देख सकते हैं कि राजा थे वो धर्म के रास्ते पे चलते थे और धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करते थे, अपना खुद का बलिदान भी दे देते थे। तो ऐसे राजा आजकल की दुनिया में बहुत कम है। आज की तारीख में राजा के बदले भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह आ गए हैं, लेकिन पहले के जैसा नहीं रहा। तो यहाँ पे हम थोड़ा विश्राम करेंगे और फिर कल ये श्लोक को आगे पढ़ना चालू करेंगे। श्लोक नंबर 7। अकबर तो मुसलमान राजा थे। हाँ।